So students, today we'll be doing uniform circular motion. So in uniform circular motion, so this is the motion and it's circular, and along with circular, in circular motion we have what kind of circular motion? Uniform. So what is uniform? What is constant here in this motion? Uniform circular motion. So what is uniform in this circular motion? Speed. Speed is uniform. Okay. In uniform motion, what is uniform? Velocity. Velocity. Okay. In uniform acceleration, what is uniform? Acceleration. Acceleration is uniform. Okay. Good. So if an object moves in a circular path with uniform speed, then the motion is called a uniform circular motion. A circular path can be made up of infinite number of small sides. So you can assume the infinite number of small sides which make up this. So circle means this arc. When you go very near to the circle, it behaves as a, instead of curve, is behave as a flat surface. Okay, so when you go very near to it, and so you can consider circle as made up of infinite number of sides, and when a body is moving along such a circular path, it changes its direction of motion continuously. Okay, so like you can assume this circle as made up of these small sides. Okay, got it? So here, if the object is over here, so this is the direction of motion. If the object is over here, then this is the direction of motion, means the tangential direction, right? Yes. Yes, sir. So here in this circle, you can see this v is the direction of velocity, which is tangential at any point. So the object is moving in clockwise direction, and this is the tangential speed, and this, it is written over there that this is acceleration, this centripetal acceleration, which is always towards the center. So its direction is also changing. Here the direction, when it is at B, this is the direction of V, and this is the direction of AC. And when the object is at C, then this is the direction of centripetal acceleration, and this is the direction of velocity. So they are perpendicular to each other. Okay. So this is the direction of centripetal acceleration towards the center, and this velocity is tangential direction of tangential velocity. So therefore, if you run on a circular track, you change your direction infinite times in one round. 4 arbitrary points are taken on the circular path, and direction of motion of body at these points are shown. Since the direction of motion changes, so therefore uniform circular motion is an accelerated motion, because the velocity is changing, because its magnitude is changing. So this motion is accelerated motion. Is this uniform acceleration? Huh? Centripetal acceleration is there. Okay. So is this, yes, so is this the case of uniform acceleration? Is the acceleration remains same? See, acceleration, if I'm asking is the acceleration remains same, it means if it is uniform acceleration, then two things are supposed to be uniform. One is uniform magnitude and another is uniform direction. If it is a vector quantity, then these two things are uniform, then only this physical quantity will be uniform. So in this case, is this uniform acceleration case? No, sir. Why?
So because direction is changed at At any every, point. yes, at every point the direction is changing, therefore this is not a uniform acceleration. Is this uniform motion? Is this motion uniform No, motion? sir. No. Why? So because velocities also depend on direction. Yes, yes, yes. Velocity also depends on direction, and direction is changing, so velocity is changing. Okay, good. Direction of acceleration is always towards the center. And what is the magnitude of the centripetal acceleration? V square by R. So R is the radius of the circle. And what is centripetal force? mv square by r. Mv square by R is the centripetal force. Okay. Now, whenever we have uniform circular motion, see when we are moving in a means in a direction, in a particular direction, then displacement is we have linear displacement, that is final position minus initial position, isn't it? Delta x, linear displacement. So this displacement is what? Linear. Okay. Now in circle, the object was over here, and in time t it reached from this position to this position. So, or let us assume that the object was over here and it reached from here to here. Okay. So here the angle was theta 1 or theta I, and here the angle is theta f. So this is the angular displacement delta theta, and that is equals to final theta minus initial theta. So this displacement is angular displacement. What kind of displacement is? Angular displacement. बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Linear displacement delta x, angular displacement delta theta. Okay. अब आप मुझे ये बताओ, ये था आपका डेल्टा थीटा. अब डेल्टा थीटा किसके इक्वल आएगा? ये आपका रेडियस आर, एट दिस द लेंथ ऑफ आर्क. क्या लिखेंगे आप? दिस लेंथ ऑफ आर्क, लेट अस राइट इट डेल्टा एस. तो क्या रिलेशन हो जाएगा? डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय आर. यही होता है ना? अरे आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस into theta, and theta must be in radians. Okay. Okay, sir. हाँ. So arc, तो आर्क को कई बार आप L से भी लिख देते हैं, और इसको R और ये थीटा, तो L इज इक्वल्स टू R थीटा लिखते हो आप, है ना? तो थीटा क्या हो जाएगा? L बाय R. L क्या? डेल्टा एस मान लो. इज दिस क्लियर? Yes, sir. अब आप एक बात बताओ, आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है, ये जो वेलोसिटी है कैसी है? ये लीनियर वेलोसिटी. तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी किससे, क्या सिंबल है? ओमेगा. क्या है उसका सिंबल? ओमेगा. और ये आपको पता है ये एवरेज है, तो आप यहाँ एवरेज भी लिख सकते हो. तो ये क्या हो जाएगी? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एंगुलर वेलोसिटी.
तो उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाती है, dx बाई dt। उसी तरह इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, d थीटा बाय dt। डन। Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। ये गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं ना हम सर्कल में। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, number of, what is frequency, frequency is number of revolutions in 1 second। अगर 1 सेकंड में आपने कितने चक्कर लगाए, ओके, तो वो क्या हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट में, क्योंकि पर यूनिट टाइम, यूनिट जो है वो सेकंड है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ जाएगी। तो नॉर्मली यहाँ सर्कल में हम हर्ट्ज में नहीं लेते, वेव्स के केस में, है ना। Yes, sir. तो वेव जैसे इसमें एक कंप्लीट चक्कर होता है, उसी तरह उसमें ये एक वेव होती है। तो 1 सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव पास हुई 1 सेकंड में, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। Okay, sir. हाँ, तो यहाँ आप मान लो कोई बहुत तेजी से ऐसे 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 घूम रही है और उसने 4 चक्कर लगा दिए 1 सेकंड में, ठीक है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, 4, sir. 4. 4 हर्ट्ज। अगर मान लो 10 चक्कर लगाए, 10 रेवोल्यूशन 2 सेकंड्स में, 10 hertz. नहीं 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 नहीं, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए, ये 10 चक्कर लगाए 2 सेकंड में। 5. हाँ, 5 hertz. तो 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5 हर्ट्ज। तो क्या फार्मूला बना फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस Divided by time. डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आगे बात समझ में। Yes, sir. अब एक और जो है फिजिकल क्वांटिटी है इसी से एसोसिएटेड, वो टाइम टेकन। वो क्या है, ये बहुत आसान है। टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन टाइम ऑफ 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने का जो टाइम है वो हो गया टाइम टेकन। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, अगर फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज आपने लिखी थी तो इसका मतलब क्या था, 4 oscillations in 1 second। अरे यही था ना इसका मतलब। Yes, sir. 4 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 4 oscillations in 1 second। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, 1/4 सेकेंड। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो भाई, आपको यहां 1 बनाना है ना, तो क्या तरीका है यहां 1 बनाने का, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, 4 से। तो इसको 4 डिवाइड कर दिया 1 बन गया, इसको 4 डिवाइड कर दिया। तो यूनिट्स अगर चेंज नहीं की हमने, यूनिट्स इधर ऑसिलेशन ही है, इधर यूनिट सेकंड ही है। आगे बात समझ में। तो 1/4 सेकंड में 0.25 सेकंड। तो यानी कि टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन इज 0.15 सेकंड। तो ये टाइम कैसे आया आपका 1/4, तो टाइम कैसे आया 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। आई कुछ बात समझ में। Yes, sir. Yes. तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमेशा फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी। अगर 5 होता तो 5 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन 1/5 सेकेंड। तो अगर 1/4 है या नहीं, सही बात ये। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर 5 हर्ट्ज की बात करो तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, एक ऑसिलेशन 2 सेकंड भाई। एक 0.2 सेकंड में एक चक्कर, 0.4 सेकंड में 2 चक्कर, 0.6 में 3, 0.8 में 4 और 1 सेकंड में 5। तो 5। आप समझ पा रहे हैं ना इसको, कंसेप्ट को। Yes, sir. आगे चलें। बेटे देखो,
ये इतनी आसान सी बात है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए, और टाइम टेकन का मतलब है टाइम टेकन, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया, उसको टाइम टेकन बोलते हैं। और 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाते हो, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बस। ओके, अब इसको अपने आप करके देख लेना, इसमें है कुछ नहीं, कुछ भी कॉमन सेंस ले, कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम इनको रिलेट कर रहे हैं सबको आपस में, जो भी हमने अब तक पढ़ा है वेरिएबल्स, उनको रिलेट करने का तरीका कहां से शुरू होता है, एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, तो थीटा बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। वेरी गुड, ठीक है। तो और आपको पता है, अगर मैं ओरिजिन से शुरू करूं, अगर मैं इनिशियली मैं ओरिजिन से शुरू करता हूं, तो आपको पता है कि मैं डिस्प्ले मतलब और मैं थीटा तक पहुंच जाता हूं, यहां थीटा 0 था, थीटा आई वाज 0 एंड थीटा एफ इज इक्वल्स टू थीटा, तो मेरा डेल्टा थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है। और यहाँ टाइम 0 था, टी नॉट, और यहाँ टाइम टी है, तो इसको थीटा बाई टी भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? यस सर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फॉर्मूलेस के साथ, कि कई बार डेल्टा की जगह ये भी आ जाता है। तो उसी तरीके से जैसे वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, तो डेट इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन और टाइम 0 था, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी वही आपकी फाइनल पोजीशन भी वही है, और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो टाइम भी वही है। ओके, यस सर। चलो अब इस फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो फॉर वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन लेने से हमें फायदा क्या हो जाएगा, जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी टाइम पीरियड हो जाएगा एक चक्कर के लिए रेवोल्यूशन। और एक चक्कर में स्टूडेंट्स आपका थीटा कितना होता है, एक पूरे चक्कर में आपका थीटा, यहां स्टूडेंट हो गए, यहां पे वापस पहुंच गए रेडियंस में। सर 360। हाँ, 360 मीन्स 2 पाई रेडियंस, ठीक है। यस सर। तो क्या हो गया ये, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा फॉर वन रेवोल्यूशन, डेल्टा थीटा इज 2 पाई रेडियन एंड टाइम टेकन इज कैपिटल टी टाइम पीरियड। और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या बन गया फॉर्मूला, 2 पाई, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। इज दिस क्लियर? यस सर। आप इसको एफ को हम न्यू भी लिख देते हैं कई बार, तो दो सिंबल है, एक एफ एक न्यू। जब आप इसको ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखोगे, तो हम इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जब आप इसको थीटा की फॉर्म में लिखोगे, तो हम इसी को बोलेंगे एंगुलर स्पीड, या एंगुलर, या मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों के सिंबल, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों सिंबल ओमेगा ही है। अगर आप इसको थीटा बाय टी लिखते हो, तो ये एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि एंगुलर स्पीड है। और अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते हो, तो हम इसका नाम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आ गई बात समझ में? यस सर। और मैं अभी इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा, लेकिन आपका जो v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ये रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं ऑफ कोर्स, मैं अगर सिर्फ
कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। आगे बात समझ कुछ, ये फार्मूला है, इसको आपको याद करना है, मैं इसकी डेरिवेशन नहीं करा रहा, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट। ओके, सर एक बार फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम था। किसका, कौन सा फार्मूला बेटे? सर v इज इक्वल टू डब्ल्यू आर। v इज इक्वल टू डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ये दिस इज नॉट डब्ल्यू, ये ओमेगा है, ऐसे डब्ल्यू ऐसे होता है, ये है डब्ल्यू, और या फिर डब्ल्यू ऐसे होता है, स्मॉल डब्ल्यू, ये कैपिटल, ये स्मॉल, लेकिन ये है ओमेगा एंगुलर। हाँ, दिस नॉट डब्ल्यू। ये कैसे बनाना है आपको, ऐसे बनाना है, ऐसे करके ऐसे नहीं बनाना, ये दिस रॉन्ग, ऐसे करके ऐसे, तो इधर से भी थोड़ा मुड़ा हुआ, इधर से मुड़ा हुआ, दोनों, तो ये ग्रीक सिंबल है ओमेगा। ओके सर। हाँ, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, कि लीनियर वेलोसिटी जो है इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ओके, ओके सर। ओके सर। नोट कर लिया? यस सर। और मैंने आपको बताया था कि आपके जो है, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर भी, जो प्रोडक्ट आपका, वो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। ध्यान है कुछ? यस सर। हाँ, यस सर। बताया था मैंने। यस सर। क्या बताया था? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो उसका प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट, अगर स्केलर है तो क्या बोलेंगे उसको हम? अगर स्पीड। भाई, अगर उसका आंसर स्केलर आता है तो स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना, और वेक्टर आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। याद आया कुछ? हम्म स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल देना एक मुझे जल्दी से। हम्म सर स्पीड। हम्म सर स्पीड। स्पीड। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? सर इनटू हाँ, वर्क का फॉर्मूला क्या है? the force into this displacement. हम्म तो जो v का फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। ओके,
तो क्या फॉर्मूला है ये? v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। तो जब हम दो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डी लिख लो, एस लिख लो, तो इन दोनों को जो हम, तो ये है डॉट प्रोडक्ट। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हाँ, तो ये है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये बीच में मैंने डॉट लगाया मल्टीप्लाई जगह। और इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे इन दोनों डॉट करने के बाद आइए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एक होता है जो हम अभी यहां लिख रहे हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। यहां पर क्रॉस है, यहां डॉट है, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहां क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो क्रॉस कब लगाते हैं? जब आपका आंसर वेक्टर निकले। ओके, तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला है तो मैंने बता दिया। तो यहां पर बात समझ आ रही है? कुछ नहीं आ रही समझ में? Yes, sir. तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? W इज इक्वल्स टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू द एंगल बिटवीन देम। सपोज डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में हो रही है, तो हो गया थीटा। तो हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स का कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो आपको पता है ये कंपोनेंट आएगा f cos थीटा, यही आएगा ना? Yes, sir. तो d इंटू एफ कॉस थीटा विल बी योर वर्क। तो इसीलिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड के साथ कॉस थीटा। और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आता है? v इज इक्वल्स टू ओमेगा का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसमें कॉस थीटा आता है, इसमें क्या आता है? साइन थीटा। और आप देख रहे हो ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, यानी कि स्पीड लिख रहा हूं, तो दैट इज इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो v इज इक्वल्स टू आप ऐसे लिखो, या v इज इक्वल्स टू ओमेगा और साइन थीटा ऐसे लिख लो, एक ही बात है। या इसको ऐसे लिख लो, वर्क डन इज इक्वल्स टू, तो ये आपका कैपिटल W वर्क डन कैपिटल W इज इक्वल्स टू एफ डी फोर्स इंटू, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हैं फोर्स यहां लग रही थी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, एफ बी और डी बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा क्या होता है? 1। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपका होगा एफ इंटू डी। तो जो आप फॉर्मूला लिखते हो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो वही सारे के, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि थीटा 0 है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखते हैं। आगे कुछ बात समझ? Yes, sir. तो जब भी ये फॉर्मूला लिखा हो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? Sir, theta 0. थीटा 0 है, इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके। और मैं, आपने देखा मैंने ऊपर लिख रहा था एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, मैं लिखा v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितना है? अगर ये फॉर्मूला मैं लिखता हूं तो, अरे थीटा 90 है ना, तो साइन 90 Yes. साइन 91 हो जाएगा ना? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. तो जब भी वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसे लिखा हो तो समझ लो थीटा 90 है। डॉट प्रोडक्ट में लिखा हो तो थीटा 0 है। तो थीटा अगर 90 हो गया तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. और
कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई ये कुली है, इसने अपने सिर पर एक लगेज रख रखा है और ही इज मूविंग फॉरवर्ड, और उसने डिस्प्लेसमेंट डी ट्रेवल की, तो फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा? इसने लगेज को अपने हाथों से ऐसे पकड़ रखा है, zero. क्यों? एंगल So because angle 90 degree है. हाँ, सॉरी, यस, Angle The between angle force of and displacement is 90. ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रखा है इसने, इसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स है इसकी, ऐसे उठा रखा है, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट इधर डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा इनके बीच में? 90 डिग्री। 90 तो एफ इंटू डी इंटू कॉस 90 डिग्री, एंड कॉस 90 इज 0, तो एफ डी इंटू 0, तो वर्क डन इज 0। ओके, उसी तरीके से अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes, sir. अब स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें कि सर इसकी डायरेक्शन जो है वो v इज इक्वल्स टू ये जो है इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन, ध्यान से देखो, ये मैं बता रहा था ओमेगा और आर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये देखो, ये सर्कल में गोल गोल चीज ऐसे घूम रही है, ये आपकी टेबल है और टेबल के ऊपर ये गोल गोल ऐसे घूम रही है, सर्कल है ये गोल गोल। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका ओमेगा। सर ये ओमेगा कैसे निकला? आप अपने डेस्क पे हाथ रखो और राइट हैंड को और उंगलियों को मोड़ लो। आप अपना राइट हैंड टेबल पे रखो और उंगलियों को मोड़ लो, और थंब किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। किसमें? तो ये जो थंब है ना, ये आपकी डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की। किसकी डायरेक्शन? तो इसका मतलब मुझे ये बताओ कि जो सर्कल में जो चीज रोटेट कर रही है वो रोटेट कर रही है जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स की जो डायरेक्शन है, जो आपने फिंगर्स रोटेट किया, तो वो कैसे किया आपने? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे फिंगर कैसे? एंटी क्लॉकवाइज है ना फिंगर आपकी। तो ऐसे ऐसे है ना आपकी फिंगर्स, ऐसे 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 रोल कर रखी है ना आपने। तो थंब आपका Yes, sir. ऊपर है, फिंगर आपने ऐसे रोल कर रखी है, ऐसे ही है ना। तो ये थंब जो है, so roll your finger, this thumb will tell you the direction of the angular velocity। सबको समझ में आ गया एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? Yes, sir. तो दो ही डायरेक्शन होंगी इसकी। दिस डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दो ही डायरेक्शन हो सकती है इसकी। अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अपवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज मूव करे तो Downward. हाँ। आप अपने अब थंब को नीचे कर दो, थंब को नीचे कर दो, जैसे कहना थम्स डाउन। एक होता थंब अप, एक होता थंब डाउन। थंब डाउन करोगे तो अब आप अपनी फिंगर्स देखो ऊपर से, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देखो अपनी फिंगर्स कैसे जो है वो कर्ल है। Yes, sir. समझ में आ गई बात? तो दो ही डायरेक्शन होती है ओमेगा की, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या तो अपवर्ड होगी या मतलब, और अगर आप लेफ्ट राइट पकड़ते हैं तो वो लेफ्ट राइट हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज अगर होता है यहाँ पे तो डायरेक्शन क्या हो जाती है ओमेगा की? Downward. डाउनवर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ गई बेटा ओमेगा के बारे में? अब ओमेगा की डायरेक्शन आपको पता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r है ना, तो ओमेगा की डायरेक्शन तो पता लग गई। अब r की डायरेक्शन ध्यान से देखो क्या होगी। r जो है ये रेडियस नहीं है, यहाँ पे r जो है पोजीशन वेक्टर क्या है?
पोजीशन वेक्टर। और ये पोजीशन वेक्टर जो है ना, वो एक्चुअली जो इसका मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का, वो रेडियस के इक्वल ही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है। ओके सर। तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये इसकी पोजीशन बता रहा है पॉइंट पी की, सेंटर से। तो सेंटर से जिस पॉइंट पे आप जो है मतलब लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर दें, तो ये उसकी पोजीशन बता रहा है, ये पोजीशन वेक्टर आर। इज दिस क्लियर? तो ये रेडियल वेक्टर है। तो एक्सिस और रेडियस, एक्सिस और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। आगे बात समझ में? यस सर। अब आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को, जो अब आपकी स्क्रीन है ना, स्क्रीन आपके मोबाइल की स्क्रीन है या नहीं है? यस सर। यस सर। मोबाइल की स्क्रीन पे आपको ओमेगा भी दिखाई दे रहा है। ओमेगा पे अपना जो राइट हैंड है उसकी फिंगर स्ट्रेट कर लो। अब तक तो रोल कर रखी थी ना आपने, अब स्ट्रेट कर लो, बिल्कुल बिल्कुल सीधी कर दो अपनी फिंगर, सीधी कर ली। अब देखो एक तरफ आपका थंब है और दूसरी तरफ आपका फ्लैट है ना? यस सर। अब फ्लैट वाले हिस्से को ओमेगा पे रखो अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, और अब जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है ये आपका प्लेन आ गया जिसके अंदर ओमेगा और आर वेक्टर हैं। कौन से वेक्टर आ गए स्क्रीन पे? आपकी स्क्रीन प्लेन। ओमेगा एंड आर। अब ओमेगा से आर की तरफ घुमाओ, तो थंब कहां बता रहा है आपका, स्क्रीन से अंदर या बाहर? बाहर। बाहर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते हैं कि इस तरीके से अपने हैंड को जो पहले लिख रखा आपने ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा पे रखना और फिर उसको आर की तरफ घुमाना, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपकी वी की डायरेक्शन होगी। ओके सर। तो ये थंब की जो डायरेक्शन है ये आ गया आपकी डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने सीखा, ये समझ गए? तो इसको रिवाइज कर लेना। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। वीडियो एक बार और देख लेना। अब एंगुलर एक्सेलरेशन भी लिख लें। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपने लिखी थी, वो जो आपने लीनियर एक्सेलरेशन लिखी थी ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, वो कैसे एक्सेलरेशन थी? लीनियर, क्योंकि वो लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में है। अब एंगुलर वेलोसिटी किसकी टर्म्स में होगी? ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी कौन सी एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन निकालो पहले। लीनियर एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन? तो स्टूडेंट्स लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, आप खुद बताओ मुझे। लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें हम, dv बाई dt, तो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब v क्या होता है? v इज इक्वल्स टू, अभी लिखा था हमने, ओमेगा आर। यस, आर क्या है? कांस्टेंट, तो आर बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाय डी टी। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो लीनियर एक्सेलरेशन को तो आपको पता ही है, उसको लिखते हैं ए से। तो ए इज इक्वल्स टू दिस, और आप इस आर को बेशक यहां बाहर लिखो, अदरवाइज अगर आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहते हो तो स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर, आपका कांस्टेंट है तो उसको आर को आप सेपरेट लिख देंगे और ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, दिस इज योर भाई लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल है स्टूडेंट्स अल्फा। क्या है? अल्फा। समझ में आ गई? अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी। ए क्या है?
dv by dt लीनियर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, d ओमेगा बाय dt अल्फा। ओके, Yes, sir. तो आपके पास अल्फा क्रॉस आर, और ये हो जाएगा आपके पास अल्फा आर, 90 डिग्री एंगल इनके बीच में, अल्फा और आर के बीच में। ओके, तो स्टूडेंट्स जिस तरह आपका फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, उस तरह एक्सेलरेशन के लिए भी आ गया v इज इक्वल्स टू अल्फा आर। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। डन हो गया। Yes, sir. तो अब आप यहां से r की वैल्यू निकाल के r इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, यहां से आप r की वैल्यू निकालेंगे, या आप यहां से r की वैल्यू आ जाएगी आपकी v बाय ओमेगा, और या आप एक काम करो, इसको रहने दो, ये तो दो फार्मूले आपके सिमेट्री में आ गए। नाउ ये आपको पता है कि v इज इक्वल्स टू ds by dt, rate of change of displacement, and acceleration is equals to ds by dt। तो सॉरी, एक्सेलरेशन इज dv by dt हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट्स जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये कैसे लिख सकते हैं आप इसको, ये फॉर्मूला कैसे डाइव कर सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। यहां से बताना एक बार, थोड़ा सोच के बताओ। चलो इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन स्टूडेंट्स हम इसको यहीं से निकाल भी सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा सा ड्राइव करना पड़ेगा रिलेशन, चलो रहने दो, ड्राइव करने की जरूरत, ड्राइव रहने देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये यही फार्मूला है, और इसी फार्मूले से इन्हीं के फार्मूले इन्हीं दोनों फार्मूले के कॉम्बिनेशन से ये फार्मूला निकला है। तो आपके लिए इतना बहुत है ये जानना कि इसमें जो ए है, जो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखते हैं, वो कुछ नहीं है, वो यही है, और जो आप वी लिखते हैं वो ये है। ओके, Yes, sir. ओके सर। तो इतना पता होना आपके लिए जरूरी है। अब लास्ट फार्मूला जो है, ये जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं, अब ये आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है हमारे पास दो तरह की एक्सेलरेशन है। तो ये जो एक जो है रेडियल एक्सेलरेशन है, चलो इसको स्टूडेंट्स अभी रहने देते हैं, अभी के लिए इतना बहुत है।
नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसके बाद, फिर टाइम भी खत्म हो गया। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स, बट यू नीड टू रिवाइज all your concepts, then only you will be able to understand, and it's preferably you should watch the video again and make the notes again, कि बहुत जो आप नए नए कंसेप्ट सीख रहे हैं, इतनी आसानी से कंसेप्ट नहीं सीखे जाते, नए कंसेप्ट हैं, बहुत मुश्किल लगेंगे शुरू शुरू में, बहुत सारा आप सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है इस चीज में टाइम लगता है, लेकिन इसको रिवाइज इट वेल। कल हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके ओके स्टूडेंट, थैंक Yes, यू। sir. Thank you. Thank you, sir.